what Mr. Ravindran regularly says to me. I don't know why people support you. He says the number of attendees is very high in your class. मैंने कहा सर लड़के इस बात पे रिलैक्स रहते हैं कि मजा हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगी. दूसरी सबसे बड़ी बात, सेकंड रीजन आई टेल यू. What was your percentage in 10 plus 2? 86. Yours? 72. 92. 93. 96. भैया. Yours? 94. ये हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात मैं बताने जा रहा हूँ. 41%. This is the failure of India's education policy. When a person of 41% in which he got compartment in chemistry. CBSE में there is a law of improvement and compartment. वो जल्दी किसी को फेल नहीं करते, कहते जाओ भैया हो गया पढ़ ले जाओ. तो 41% with compartment in chemistry. और compartment, why compartment? I forgot that today it's a chemistry paper. तो मैं फिजिक्स की बुक लेके चला गया. तो वो पंडित का हमारा चपरासी उसने कहा कि भैया आज तो केमिस्ट्री का पेपर है. केमिस्ट्री मैंने कहा यार अब तो हो नहीं पाएगा. मैंने कहा लगा ही लो सुबह. तो नहीं यार भैया प्लीज क्या कर रहे हैं भैया, एग्जाम देने जा रहा है और जो है सुबह सुबह शराब पी रहा है. तो पी लो प्रवचन मत दो. अगर मैं नहीं भी लेता तो भी मैं पास हो जाता. क्योंकि मेरे अगल बगल जितने फ्रेंड्स थे वो सब बोल रहे थे तो तुम्हारी कॉपी लिख देना यार, अगली बार लिख ले. पैनिकनेस कभी रहा ही नहीं लाइफ में बिकॉज ऑफ माई फादर. उन्होंने कभी मुझसे कहा ही नहीं कि बेटा पढ़ने से कुछ होता नहीं बेटा. हमेशा से इस बात को कहते रहे. 96%, 98 कितना अच्छा परसेंटेज है आपका. Sir, it's a percentage to be appreciated. If this percentage would have been in Japan, you would have been on the topmost authority in Japan. You would not have been struggling for job in Japan. Because Japan's education policy is based on the principle of awakening the mind. The complete objective of Japan's education policy is to awaken the mind. Awaken. If you have 96% marks, 96%, you are preparing for IAS and you don't know about the major developments in a country. Example you want? You heard about Vidya Devi? No? Yes, sir. Anyone in the class? Property. 1967. Himachal Pradesh. You are regularly reading Hindu? Only one person is giving the answer in the class. It's a very important incident in the month of January. The January or February? January. The decision of Supreme Court on Vidya Devi's case from Himachal Pradesh. 1967, her land was taken away by the government. When her land was taken away by the government, then right to property was a fundamental right. Because 44th Amendment took place in 1978. But then also the amendment says the state has the right to take away the property according to law. You cannot do your discretion. Government cannot do the discretion. So first blunder you did, you took away the land of the lady without following the law. Second thing, you did not respect the fundamental right of that time. So Supreme Court gives the decision that right to property is a right of humanity. And that lady got the compensation of 1 crore. बस यहीं पे तुम्हारा 96% की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है.
क्योंकि जो भी तुम 96% पाओ, दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, वेरी अप्रिशिएबल सर। आपने बड़ी मेहनत की होगी, पता है मुझे, बहुत। आपने पूरी जिंदगी लगा दी होगी। यू वुड हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट स्टडिंग. You would have no personal life at that time except studying, but you missed one thing. Awake in mind. तुम सोचना, मतलब सोच तो रहे ही हो, बट इन अ राइट डायरेक्शन. और सबसे पावरफुल चीज ह्यूमन लाइफ में क्या है? माइंड. If you earn four things, you got 27 teachers here. Have you heard any teacher speaking against the management? No, except me. One of my students, he established a coaching in Jaipur 2-3 days back. He's from Assam. So he has put a big cutout of mine in Jaipur. और बड़ा सा cutout लगा है इसमें, around 3-4 meters, 5 meters. बड़ा बड़ा सा कटआउट लगाया कि दिस कोचिंग इज अंडर द गाइडेंस ऑफ और प्रताप ओझा सर, वाजीराम कभी. तो इनको पता चल गया, इनकी तो आईडी है. मैं गांव में था, मुझे पता चला कि कल क्लास टुमारो, तो आई हैव अ हॉलिडे फॉर द प्रीवियस वीक. तो आई लेफ्ट माय विलेज, आई वाज देयर इन द विलेज. तो इन लोगों ने मुझे फोन किया, यू हैव अ क्लास हियर. ठीक है, तो मैं अर्जेंट, यू हैव टू मीट अर्जेंटली, इट्स वेरी अर्जेंट. तो मैं आया अभी, तो इन्होंने कहा व्हाट इज दिस. देखा, मेरा कटआउट है. हाँ, खराब है तुम्हारी. हाउ यू आर टॉकिंग. अबे दिखाई नहीं पड़ रहा कटआउट है. कटआउट है मेरा. हाउ कैन यू यूज दैट. यू आर चार्जिंग समथिंग फ्रॉम हिम. कहा है बताए. ड्रामा मत करो कि अगर तुम मुझे जो है ट्रिप पे नहीं ले जाओगे, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी. बाहर में जाओ. कंडीशनल कोई काम नहीं करना है जिंदगी में. अपना काम करना है, अपनी तरह से करना है. तुम एक चीज मिस करते हो जिंदगी में, बहुत तगड़ी. यू आर बोर्न इन इंडिया. दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्राउड. मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई एम नॉट प्राउड, आई एम अनहैप्पी टू बी बोर्न इन इंडिया. बेटा शुक्र मनाओ कि सीरिया लियोन में नहीं पैदा हुए. यू सी द लाइफ इन अमेरिका. वेयर इज द लाइफ इन अमेरिका. वेयर यू सी द लाइफ इन अमेरिका. मशीन्स आर लिविंग इन अमेरिका. लाइफ इज हियर इन इंडिया. साजिश कर रहे हैं तुम्हारे अगल बगल के लोग. Conspiracies are going on. The person is sitting with you, he is smiling, he is talking, he is having a lunch with you, he is having a dinner. He is saying to you, I can die for you. And he is planning for your assassination. And the best part is, you know that. And you are also planning. सर, इसकी वजह पता क्या है? मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, बड़े नॉलेजेबल लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पर वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं. सर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. मान लो हमें निकाल दिया तो हमको डर लगता है, इनको नहीं लगता. इनको भी लगता है, मिर्जापुर के रहने वाले हैं. दिल्ली का सबसे प्लस पॉइंट क्या है? इट हैज अ क्लोज बॉर्डर विद गाजियाबाद, नोएडा, कासना. नोएडा में गुजरों का कहा है कासना. गुज्जर लड़के वहां पे 7.5 फीट हाइट, 500 kg वेट, पेड़ पकड़ के हिला रहे. अभी शाम को लड़का आ रहा है, शाम को हम लोग डिनर, तो शाम को पेड़ पकड़ के हिला. क्या बोले? अरे भैया लड़ाई वड़ाई नहीं, मजा ही नहीं आ रहा कहीं. और तुम हमें डरा रहे हो कि निकाल देंगे. कोई कुछ नहीं करेगा. तुमने अगर मुझसे 3-4 बातें नहीं सीखी ना,
तो ये क्लास में तुम्हारा आना बेकार हो गया. इफ यू हैवंट लर्न, आई वॉज नॉट हियर टू टीच यू, डेफिनेटली नॉट. दैट वॉज अ इंसल्ट फॉर ऑल योर अचीवमेंट्स इन द पास्ट. 96%, 97%, 98%, IITN, IIM, etc. etc. और अगर मैं तुम्हें पढ़ाने आता तब तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए. लेकिन तुम सीख किसे भी सकते हो. दैट इज अनदर, दैट इज अ मेजर पॉइंट. दिस इज व्हाट आई वांट टू से टू यू कि तुम मुझसे पढ़ नहीं सकते, अच्छी बात है, पर तुम मुझसे कुछ चीजें सीख सकते हो. लर्निंग कैन बी फ्रॉम एनीवन. अगर तुम्हें लर्निंग का आर्ट आता है ना, यू नो द आर्ट ऑफ लर्निंग, तो यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवन. And the first thing which I was telling you in the class in the past 12 lectures was curiosity. What is the mother of knowledge? Curiosity. तुम्हें आईएएस बनना है ना, मैं तुम्हें उससे बड़े बड़े फॉर्मूले बता रहा हूं. मैं कभी नहीं पढ़ा जिंदगी में, कभी पढ़ा ही नहीं. बस कभी मन कर गया पढ़ाई करने का, ऐसे एक बार इच्छा हो गई, तैयारी करते पढ़ लेते, फिर पढ़ने ही लगे. Curiosity is the mother of knowledge. If you don't have curiosity, books will be useless for you. एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें कि तुम कहां मिस्टेक करते हो. वेर यू डू द ब्लंडर, नॉट मिस्टेक, ब्लंडर. फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, 18th सेंचुरी इंडिया, बिपिन चंद्र पढ़ लिया ना. यू नो अबाउट लेटर मुगल्स. लेटर मुगल्स, कैन यू टेल मी अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द लेटर मुगल्स? ये तो मैं तुम लोगों से इसलिए कहता हूं बंदूक चलाओ क्योंकि तुम यार जिस तरह का लाइफस्टाइल जीते हो ना, योर बिहेवियर डिसाइड्स योर फ्यूचर. तुमको किस चीज की जरूरत है? कॉन्फिडेंस की, एंथुसियाज्म की, डेयरनेस की और पेशेंस की. ये 4 चीजों की तुम्हें जरूरत है इस वक्त. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यू कैन नॉट बाय दीज 4 थिंग्स, दे आर नॉट अ कमोडिटी. Either you have or you have to develop. और डेवलप करने का तरीका क्या है? थॉट प्रोसेस. थॉट प्रोसेस. अगर तुम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार सोचना शुरू कर दो फॉर कंटिन्यूअस 20 days, it will start becoming your habit. तुम्हें सिगरेट छोड़ना है ना, बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं. तुमने सिगरेट एक दिन में पीनी नहीं सीखी थी. It took at least 10 days for you to develop it as a habit of smoking. तो 10 दिन अगर उसने हैबिट बनने में ली थी, तो 10 दिन हैबिट टूटने में भी लगेगी. 15 दिन लगेगी, 20 दिन लगेगी. तुम एक ही दिन में छोड़ देना चाहते हो. When you rub here for 100 times, you get a mark here. You get that mark in how many seconds? 1 minute. 1 minute. But when that mark is created after rubbing this place for 90 times, it goes on after 6 months. तुम अगर चाहो कि मैं उल्टा रगड़ दूं और ये मार्क खत्म हो जाए तो बहुत पेनिट्रेट हो जाएगा. अब 4 लोग हैं लेटर मुगल्स में. बहादुर शाह 1, जहांगीर शाह, फारूक सियार एंड मोहम्मद शाह रंगीला. Anyone in the class who can tell me the drawback of all the 4 rulers? They do not have a law of succession. They have? They do not have a law of succession. Why are you wearing this? Coronavirus. बेटा ये इकोनॉमी खतरे में चल रही है. यस बैंक डूब गया. अब क्या है ना, कोई प्रोटेस्ट करने नहीं है. हम लोग इतने डरे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भीड़ में मत जाना. भीड़ में मत जाना. एनीथिंग कैन हैपन. भीड़ में मत जाना. अब ये शाहीन बाग में लोग हट गए वहां से. मैंने 2 लोग भेज दिए, वो फोन पे बात कर रहे हैं. हाँ, चाइना से कल ही तो आए थे. And
they started sneezing. वो धीरे धीरे औरतें निकलने की आ रहा है भैया, थोड़ा अलग खालू आए तो वही से उनसे मिलने लगे। अब यस बैंक डूब गया, कितने सारे इन्वेस्टर डूब गए, कितना सारा पैसा डूब गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब प्रोटेस्ट होना था बहुत भयंकर, करो ना। सर मेरा बेटा रहता है डैलियान में, चाइना। अभी आज उसने मुझसे कहा कि यार ऐसा करो, 1 करोड़ मास्क की इंतजाम करा दो। अरे मैंने कहा भाई इंडिया में शॉर्टेज है। मैं एयरपोर्ट पे था, 3/4 लोग पहने हुए थे, 3/4 लोग मुझे कह रहा भाई साहब ये क्या लगाए, क्या लगाए मतलब क्या है भाई साहब, मास्क है ये तो सब लोग क्या होगा, कुछ खतरा होने जा रहा है। मगर ऐसे ही से आदमी होगा। मैं पैजामा खुला, चप्पल वप्पल पहने हुए था, इतना मजा आ रहा था लोगों को देख के। भूख से मरोगे, भूख थोड़ी मरोगे, खाने को नहीं रहेगा। हिंदू मुस्लिम दंगा होने जा रहा है, पाकिस्तान से वॉर होने जा रहा है, ये सब होने जा रहा है। कोरोना से ना मरोगे। वो गवर्नमेंट बड़ा स्ट्रेटेजिकली, हाँ थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए, प्रिकॉशन वेरी गुड, इम्पॉर्टेंट। दिस शोज दैट हाउ सेंसिटिव यू आर, वेरी गुड। लड़की अभी नाराज हो जाएगी। दिस इज गिवन इन द सेकेंड पेज ऑफ द एनसीईआरटी। अगर तुमने 2nd 3rd पेज पढ़ा होता ना, तुम्हें ड्रॉबैक पता होता। For possibly 200+ people are sitting in the class, but you won't be able to tell me the drawback of all the 4 people. Reason? You did not went through that in curiosity. None of them were? Sir, there was lack of aspiration among them to consolidate India. Like there was in that was in Anything else? Anyone else? There were many kingmakers in this vote. Achha. Okay, the first thing. And Achha. Anyone from there? We all want to become Nawabs. Policies. अब 2 चीज तुम्हें देखनी है, बैकग्राउंड एंड ड्रॉबैक। बैकग्राउंड एंड ड्रॉबैक। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ बहादुर शाह 1? फाइनेंशियल क्राइसिस। कितने रुपए थे स्टेट ट्रेजरी में व्हेन औरंगजेब डाइड? हाउ मच मनी वाज देयर इन द स्टेट ट्रेजरी व्हेन ही डाइड? हाँ? कितना? कितना पैसा था ट्रेजरी में? सर 2nd पेज पे लिखा हुआ है 13 करोड़। There was 13 crore in the state treasury in 1707 when Aurangzeb died. What this man did, Bahadur Shah I, he was facing political and financial crisis, and to appease every section, he started distributing the money. And he went on distributing to such a level that the state became financially bankrupt. This was the drawback of Bahadur Shah I, financial bankruptcy. The state became financially bankrupt. Now when the state became financially bankrupt, you cannot run the state. Now see, the background of Jahandar Shah. The state is financially bankrupt. State is financially bankrupt, you cannot run. You require someone's support who can provide you the money. So here you will see the emergence of Kingmaker. This was his drawback. Emergence of Kingmaker. Now, what is the background of Farrukhsiyar? Kingmaker. Emergence of Kingmaker. There is a Kingmaker. So if there are 10 nobles in a court and one is a Kingmaker, 9 will be disappointed. So those 9 started conspiring. They started instigating the king. सरकार आपको यूज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, कंट्रोल कर रही है सरकार, इसकी ताकत बढ़ रही है सरकार। Farrukhsiyar started acting. ये होश में आना. The Kingmakers killed the king.
Supreme authority. Kingmakers became the supreme authority. This was his drawback. Kingmaker supreme authority बन गए, राजा को ही मार दिया. अब जब Kingmaker supreme authority बन गए, then the nobles came out open. Open war started between all the nobles. Irani gang, Turani gang, Indian gang. राजा खत्म, अब राजा बाहर हो गया. What is his background? Kingmakers are dominant. अभी किसकी सुने? अब बहुत सारे किंग मेकर सामने आ रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो. ये किसी की सुन नहीं रहा. तो 1724 beginning of the physical breakup of Mughal Empire when Nizam-ul-Mulk moves towards Hyderabad to establish an independent state. ये देखो, ये है ड्रॉबैक. तुम यार क्यूरियोसिटी से पढ़ते ही हो यार. तुम मेहनत बहुत करते हो. I repeat the line. You are doing the labor, but you are not doing the labor in a proper way. I have no doubt on your labor. मुझे पता है कि all those people who come for the preparation in the first attempt, they all do the labor. All 99.9% people do the labor in the first attempt. But when their labor goes into vain, मतलब you appeared for the exam in the first attempt and you failed, तो तुम्हारा 50% enthusiasm नीचे आए. क्यों? In spite of all your labor, कोई बात नहीं यार, आप इसका थोड़ी डाउट तुम्हें. तुम तो हंसते हंसते चुप हो गए. मैं तो उसी बात पर डर गया. अब कोई आदमी हंस रहा है, एक बार तुमको देखे सीधे, तो या तो वो पागल है. हंसते रहो. अगर तुम रोते रोते चुप होते हो तो अचीवमेंट है. कभी हंसते हंसते चुप मत होना, नहीं तो या तो तुम पागल मान लिए जाओगे और या तो तुम एरिस्टोटल मान लिए जाओगे. अब तुम डिसाइड कर लो दोनों में से तुम कौन. मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी हंसते हंसते चुप मत हो. जब भी तुम हंस रहे हो तो खुल कर हंसो. शर्ट वर्ट फाड़ के हंसो. सर मैं किसी के लिए बोलने नहीं आता, मैं किसी को खुश करने नहीं आता, मैं किसी को पढ़ाने नहीं आता. मुझसे दुनिया में हर आदमी दुखी है, कुछ आप लोगों को छोड़कर. इस बात की मुझे खुशी है. जैसे मेरे साथ के लोग हैं, दे वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी, कि हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले दुखी ना हो. तो तुम दुखी रहोगे जिंदगी भर. घर वालों का दुखी होना बहुत जरूरी है यार. तो उनकी हर इच्छा नहीं पूरी कर सकते ना. उनकी इच्छा पे इच्छा दिए जा रहे हैं कि 10th में इफ यू गॉट बिलो 95 देन यू सी व्हाट